Hello students, today we have to start a new chapter, chapter 4, organization of data. Statics, we have to learn about statics, and we have to learn in this chapter organization of data. In this chapter we have to learn about the meaning of classification, methods of classification, meaning of variables, meaning of frequencies, type of series and individual series, discrete series, continuous series. These are type of series, okay, and type of continuous series and bivariate frequency distributions. Then students, now we have to learn the statics and statics in plural sense. In plural sense, we have to learn the statics in the collection of data, organization of data, presentation of data and interpretation of data. These are features of the statics in plural sense. And in your syllabus, these are there are statics in plural sense. So we have to learn the continuously these these features of plural sense in the form of chapters. Then in previous chapter we have to learn the collection of data. There are two type of data, primary data and secondary data. And now we have to start a new chapter, organization of data. सबसे पहले हमने डाटा को कलेक्ट करना सीखा. There are two types of data, primary and secondary. Data which is collected by the through of investigator in the first time, that is known as primary data, and the data which is already collected and second hand data is also known as secondary data. जो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट होता है उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं और जिसे हम खुद कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं. अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. Organization or classification of data, same thing is there. First we have to discuss your introduction. In the previous chapter we learned how to collect data through the primary or secondary sources. The collected data is complex and unorganized mass of figure which is very difficult to analyze and interpret it. Therefore, in order to make the data capable of analyzing, these are classified and tabulated. Okay. When we have to collect the data are in the form of complex way and the unorganized figure. So, first we have to distribute or the classified the data according to their units, according to their groups, according to their requirement. There is we have to categorize the data, we have to classify the data. The collected data is classified into classes and subclasses according to some characteristics. This process is known as classification. The process of tabulation discussed in the next chapter is to be present the classified data in the systematic tabular form. डाटा को जब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू क्लासीफाइड करते हैं तो क्लासिफिकेशन कहलाता है, और जब हम डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसको हम टेबुलेशन बोलते हैं. मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. What the meaning of classification? Classification is the process of arranging the data into a sequence and a group according to their common characteristics or separating them into the different but related parts. Classification of data means arranging the data in a sequence and a group according to their characteristics.
Under the classification, on the basis of chosen characteristics, the similarities and the dissimilarities in the various items are noted, and items exhibiting similarity are grouped together in one class. Through classification, we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous element of the collected information. Okay, through the classification, we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous element of the collected information. जो भी हमारे को डाटा कलेक्टेड डाटा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम होमोजेनिटी की फॉर्म में लेकर आते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस. अब हमारे को क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशंस? इट condenses the raw data into a form suitable for statistical analysis. किसी भी रॉ डाटा को, कॉम्प्लेक्स डाटा को ये एक सुइटेबल फॉर्म में लेकर आता है. इट रिमूव्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द हाईलाइट्स द फीचर्स ऑफ द डाटा. जो भी डाटा में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी रहती है उसको ये रिमूव करता है. इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड इन ड्राइंग इंटरफेरेंस फ्रॉम द डाटा. साथ में ही ये क्या करता है, कोई भी डाटा, कोई भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये कंपेयर कराने के लिए भी इजी रहता है. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट ऑफ डाटा सेट. और साथ में ही क्या प्रोवाइड करता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप. इसका मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन से कंपेयर भी की जा सकती है और वो उससे रिलेटेड भी होती है. It helps in the statistical analysis by separating element of the data set into homogeneous group and hence bring out the point of similarities and dissimilarities. ये स्टैटिक एनालिसिस को भी हेल्प करता है. कैसे करता है? उसको एक होमोजीनियस फॉर्म में लेकर आके, क्लासीफाइड करके, ग्रुप में उसको डिवाइड करके और उसमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को कंसीडर करता है. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन? ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन की? देन फर्स्ट, टू सिंप्लीफाई एंड कंसेंडेंस द मास ऑफ डाटा. इट मीन्स in classification the aim is to be eliminate unnecessary detail and make the huge mass of complex data in simple, condensed, logical and comprehensible form. क्लासिफिकेशन डाटा का मेन एम क्या है? अलाइनमेंट करना, अननेसेसरी डिटेल को रिमूव करना और एक उसको ईजी वे में, सिंपल वे में वहाँ पे सुइटेबल फॉर्म में लेकर आना. It helps in highlighting the significant features of data. उसके फीचर्स को ये हाईलाइट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूज एंड फ्रेगमेंटेड डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस हैज़ टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा टू ascertain the structure and nature of the population. इसी वे में जैसे सेंसस का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर सेंसस का ओवर पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं तो उसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. टोटल उसका मैरिटल स्टेटस हम बताते हैं, सेक्स रेशियो हम बताते हैं, एजुकेशन सिस्टम हम बताते हैं, कितने परसेंट लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, एक ऑक्यूपेशंस बताते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने अनएम्प्लॉयज़ हैं. तो उसको हम ग्रुप में इंफॉर्मेशन को हम वहाँ पे क्लासीफाइड कर देते हैं. उससे हमारे को वो इन्फॉर्मेशन समझने में इजी हो जाती है. टू एक्सप्लेन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ ऑफ डाटा. क्लासिफिकेशन फैसिलिटीज़ द ग्रुपिंग ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़. दिस enables to investigator to grasp them easily. Face fact like educated and uneducated
married and unmarried, employed and unemployed, etc. are kept in separate classes. ओके, डिसिमिलरिटीज़ एंड सिमिलरिटीज़ को भी वो ईजीली शो करता है. कैसे? इट अनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर्स टू ग्रैब देम ईजीली. हमें ईजीली पता चल जाता है इनके रिगार्डिंग. जब हम इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग वहाँ पे बात करते हैं, कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, और कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं. तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी हमारे को इजीली मिल सकती है. इसलिए भी डाटा को क्लासिफाइड करना ज़रूरी है. टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए कि कौन से लेवल पे क्या एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा है, क्या अनएजुकेटेड ज़्यादा है. तो टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, classification enables us to make the meaningful comparisons, draw inferences and the locate fact. To study the relationship, classification help in finding out causes and effect relationship based on some criteria between the data. For example, the characteristics of the income and education can be related after classifying the mass of data. इनकम एंड एजुकेशन, इसके बारे में भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो कब पता चलता है हमें इजीली, जब हम उस डाटा को इजीली वे में क्लासिफाइड कर चुके हैं. ठीक है, कि कितना एजुकेटेड पर्सन का इनकम लेवल कितना कम होगा और ज़्यादा होगा. तो एक प्रॉपर वे में जब डाटा हमारे पास क्लासिफाइड होगा, तभी हम उन चीज़ों को, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक यूनिट को दूसरी यूनिट से हम वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे. टू प्रिपेयर द डाटा फॉर द टेबुलेशन, ओनली क्लासिफाइड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म. ठीक है, जो डाटा क्लासिफाइड होगा उसी को हम एक प्रॉपर मैनर में एक टेबुलर फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. क्लासिफिकेशन दस द प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ टेबुलेशन एंड फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस. और क्लासिफिकेशन की वजह से ही वो टेबुलेशन फॉर्म में भी आएगा और अनदर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में भी आएगा. टू प्रेजेंट ए मेंटल पिक्चर, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन अनेबल वन टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर टू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड समराइज डाटा कैन ईजीली बी रिमेंबर्ड. अगर हम जब किसी क्लासिफाइड किसी टेबल को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ढंग से ठीक से कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे हमारे को वो अच्छे से समझ में भी आता है और हम उसको इजीली याद भी रख पाते हैं. थैंक यू.